नमस्कार दोस्तों। अभी रिसेंटली एक सेंसेशनल वीडियो जुडिशरी से रिलेटेड सर्कुलेशन में है, जिसमें यह कहा गया है कि के मनन साहब जो सीनियर एडवोकेट हैं और दिल्ली बार काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने कहीं किसी टेलीविज़न में यह स्टेटमेंट दी है कि 90% ऑफ द लोअर जुडिशरी इज़ करप्ट। अब ओरिजिनल इंटरव्यू जिसमें यह एक्चुअली बात कही है वो तो हमें मिला नहीं काफ़ी एफर्ट्स करने के बाद भी, पर एक कोरिलेटेड वीडियो ज़रूर सामने जो कि सर्कुलेशन में है, पहले उसको देखते हैं और इसी का फैक्ट चेक करना है और व्हाट इज़ एक्चुअल स्टेटस ऑफ सच ए वीडियो इज़ टू बी सीन। लेट अस सी देयरफॉर दिस वीडियो फर्स्ट। There was a recent statement given by senior advocate KK Menon in an interview mentioning the fact that over 90% of the lower court judges in India are corrupt. Who, according to you, are the fixers here, and what's your comment? Mr. KK Menon is a senior advocate. He's a good friend of mine. He has been chairman Bar Council of Delhi. Currently, he is a member Bar Council of Delhi. He has been my colleague in the Bar Council for the last about 25 years. So, Mr. Menon, having made this statement, naturally he must be having some facts and figures, and he must have made this statement with responsibility. But talking about corruption in the lower judiciary, what about higher judiciary? You know, we have to think about that also. And secondly, Mr. Menon has also said in this statement that the honest judges, 10% of the honest judges are suffering. What about advocates? You know, my view is that honest advocates and honest judges, they are both suffering and suffocating. Yes, level of corruption, I can't say about 90%. I don't give any comment because it's a statement given with responsibility by Mr. Menon, but corruption is there. And then you raise the question about the fixer, because in this interview also the issue of fixer has come. Yeah. That who are the touts, the fixers? They are, among advocates only. Even leaders of the bar, we have complaints. I am saying it with a great sense of responsibility. In Bar Council of India, we are dealing with many matters where leaders of the bar, elected leaders of the bar, complaints have been made against them by the judicial officers that he approached me with a offer of bribe. We have such complaints. So the fixtures and the touts, they are also from this very community. It is a issue, which must be addressed, and it's a issue which has been there, you may be knowing in 2004, Justice S.P. Bharucha, he was Chief Justice of India, and in a farewell function organized by Supreme Court Bar Association, he made a statement which stunned everybody. The media, the advocate, the judges. He said that 25% judges from lower court, they are corrupt. He made that statement, very sensational statement. But then corruption is there. There can't be any denial about it. But I must tell you one thing. If we reach the level of 90% corruption in the judiciary, then people will lose complete faith in judiciary, and they will start, deciding their disputes and conflicts on the streets instead of coming to the courts. Then where is the need of coming to the court? If you can't just get any justice, 9 of 10 judges are corrupt, then where is the need to go to the court? Then decide your dispute, on the streets. So, but this is a very serious question, and it needs to be addressed with equal seriousness by all concerned. Absolutely, sir. And even when I watched the interview, the first kind of thing that popped up in my head was this only, 90%. If the figure was somewhat maybe, what we all might, have assumed about corruption and the legal profession, it would have still surpassed that. But 90% is a huge. No, I would not make any comment on that. Mr. KK Menon is a very responsible senior advocate. Absolutely. And
He may be having certain inputs and facts and figures, so no comment on 90% part of it. But yes, corruption is there, and it's a vice which has to be dealt with very, very seriously. So recently, incidents have happened. So many incidents. I am not naming anyone, but it's an issue of great importance, significance, and it must be addressed sooner than better. Before people lose faith in the judicial system, the judicial kind of functioning of the country, what's the use of then having these courts, the Supreme Court to the lowest court? What is the need? अब अगर हमें ओरिजिनल मनन साहब की वीडियो मिल जाती, तब तो मैं मनन साहब जी को ये जरूर कहता कि मनन साहब तुसी है कि किता तुसी साडे पंजाबी भरा हो और ऐसी लूज स्टेटमेंट तो आप दे नहीं सकते, एंड ऑन व्हाट फैक्ट्स यू हैव स्टेटेड सो। आप बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में सीनियर पोजीशन होल्ड करते हो और आपकी स्टेटमेंट की कुछ वैल्यू है। बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट और कमेंट है बिना किसी डाटा के। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है, ऐसी कौन सी यार्डस्टिक आपने अप्लाई करी है? क्या बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इलेक्शन आ रहे हैं इसलिए तो ऐसी सेंसेशन क्रिएट नहीं की जा रही? पर क्योंकि अब ऐसा कंट्रोवर्सी उठी ही है तो कंफ्यूजन तो दूर करना ही पड़ेगा। शायद आपकी किसी स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और बियॉन्ड प्रोपोर्शन ब्लो करने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा। हम तो आपके दोस्त हैं और आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें कोई पॉलिटिक्स से लेना देना भी नहीं है। और लोअर जुडिशरी के बारे में, वो भी पैन इंडिया, ये स्टेटमेंट शायद इसलिए आई है क्योंकि जानते हैं कि लोअर जुडिशरी को कोई कंटेम्प्ट की पावर नहीं है। कल को कोई भी उठ करके कह दे कि 100% ऑफ इंडियंस आर करप्ट, तो कोई क्या कर लेगा? और ऐसी स्टेटमेंट की क्या वैल्यू है? वेद प्रकाश शर्मा जी ने तो इस बात का खंडन किया ही है, जो कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं और बार पॉलिटिक्स में और बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में ताल्लुक़ रखते हैं। अगर एज्यूम कर भी लिया जाए तो भी 90% जुडिशरी करप्ट का मायने ये नहीं निकलता कि 90% ऑफ द केसेस आर बीइंग डिसाइडेड इन ए करप्ट मैनर। सी, देयर कैन बी वेरियस कैटेगरीज ऑफ करप्शन। एक तो है कैजुअल करप्शन, जो कि डे टू डे लाइफ में इम्बाइब हो सकती है, और दूसरी है मोटी करप्शन, जिसमें करोड़ों रुपए का हेर फेर हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स का इंस्टेंस तो सामने आया ही है, जिसमें वो मनी इलीगली प्रोक्योर की गई है, इसके बावजूद भी वो मनी कॉन्फिस्केट नहीं हुई और कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्शन नहीं हो पाया। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव बायस भी हो सकती है। कुछ जज रॉबिनहुड काइंड हो सकते हैं, कुछ कैपिटलिस्ट, कुछ हस्बैंड्स को फेवर कर सकते हैं और कुछ वाइफ्स को फेवर कर सकते हैं। कोई जनरली पुलिस के फेवर में डिसाइड करता है और कोई एंटी पुलिस। पर करप्शन तो करप्शन ही है और इलीगल है। कुछ लोग तो 100 और 500 रुपए की करप्शन में भी जेल की सज़ा काट रहे हैं और कुछ करोड़ों रुपए के हेरफेर करने के बाद भी खुले घूम रहे हैं। तो फिर कौन करप्शन को बोल्डली और कॉन्फिडेंटली हैंडल कर सकता है, इस बात पर डिपेंड करता है, या फिर जो पकड़ा गया वही चोर है। हमारे पास भी जुडिशियल ऑफिसर्स के सुप्रीम कोर्ट लेवल के मैटर्स आते ही हैं, जिसमें कोई जज सस्पेंड हो गया है या फिर टर्मिनेट हो गया है या कंपलसरी रिटायर कर दिया गया है, या फिर किसी जुडिशियल ऑफिसर्स की प्रोबेशन ही एक्सटेंड नहीं की। अभी रिसेंटली एक जज ने अपने रिलेटिव को ही एंटिसिपेटरी बेल दे दी, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने एक्सप्लेनेशन मांगी है। रिगार्डिंग मनन इंटरव्यू, मुझे तो वो इंटरव्यू मिला नहीं। जब मैंने वेद प्रकाश शर्मा जी से ये बात पूछी तो उन्होंने बताया कि शायद रिपब्लिक टीवी में कुछ हफ्ते पहले आया था, पर मैं लोकेट नहीं कर पाया। इन लेडी मोहतरमा एडवोकेट से भी मैंने मैसेज डाल के पूछा, पर कोई रिस्पांस मेरे को मिला नहीं। तो मुझे तो यह सब चंडू खाने की खबर लग रही है। वैसे भी करप्शन का मुद्दा एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल टॉपिक है, जिसे अवॉइड करना ही अप्रोप्रिएट है। करप्शन तो एग्जिस्ट करती है, यह सबको पता ही है,
पर अभी तक स्विस बैंक से कोई पैसा वापस नहीं आया है। 15-15 लाख की जगह 1 रुपया भी बैंक अकाउंट में लोगों के क्रेडिट नहीं हुआ है। वैसे भी जो कोई अगर करप्शन कर रहा है तो अपने और अपनी फैमिली के रिस्क पर कर रहा है। जब फंसता है तो सब रोब निकल जाता है, तब घर वाले भी साथ छोड़ देते हैं और वकील साहब ही कोर्टों के दरवाजे खटखटाते हैं और कहते हैं कि माय लॉर्ड माय क्लाइंट इज इनोसेंट। तो भाई लॉयर्स की और वकीलों की इज्जत करो, इन्हें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये ही रात रात भर बैठ कर के मेहनत करते हैं और दे थिंक कॉन्स्टिट्यूशनली इन ए डिफरेंट मैनर। इन्हीं की थिंकिंग के कारण कंट्री को फ्रीडम मिली है। आफ्टर ऑल मोस्ट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स व लॉयर्स। और लोअर जुडिशरी के ऑफिसर्स भी काफ़ी मेहनत करते हैं, उन पे प्रेशर काफ़ी रहता है और वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा है। यह अलग बात है कि उनके मैटर्स और डिसीजंस सेट असाइड होते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, बट फॉर दैट मैटर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स को ही रिव्यू कर देता है। अभी पंदेर और कोहली का जो मैटर है उसमें उसको एक्विटल मिला ही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले खुद ही उस मैटर में उस आदमी को कन्विक्शन दी थी। एनीवे, लेट अस नॉट therefore much dwell into the topic of corruption relating to the judiciary. We should otherwise try to cleanse the entire atmosphere and work according to a good citizen. Thank you very much. Have a good day. Namaste, Sat Sri Akal and Jai Hind.